Good evening, viewers. You're now watching Hornbill TV, Northeast Express. The winter session of the Assam Legislative Assembly begins today and will continue for 5 days. The session is expected to be significant with 27 bills scheduled to be tabled during the proceedings. The state government has already announced that the reports of the Tribhuvan Prasad Terwari Commission of Inquiry into the Assam Disturbance 1983 and the T.U. Mehta Commission will also be laid before the House. On the opening day, an adjournment motion regarding the death of singer Zubin Garg was admitted following strong demands from the opposition. The issue is likely to spark intense debate during the session, and opposition MLAs arrived at the assembly wearing black badges as a mark of protest and to demand justice for Zubin Garg. Sivsagar MLA Akhil Gogoi entered the assembly dressed in traditional Assamese attire while holding a poster featuring the Chief Minister and raising slogans against the justice for Zubin Garg. इस बीजेपी गवर्नमेंट का टेन्योर में जुबिन गार्ग का मौत हो गया है, देहांत हो गया है, हत्या किया हुआ है। चीफ मिनिस्टर ने बोला हत्या किया है। हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट का टेन्योर में बीजेपी जुबिन गार्ग का हत्या हो गया है, लेकिन आज तक हम लोगों ने जितना सवाल पूछा जवाब नहीं है कैसे जुबिन गार्ग का मौत हो गया है। आज तक CIO चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और IO जहां में सिंगापुर में हत्या हो गया था, मौत हो गया था, वहां तक प्लेस ऑफ ऑकरेंस तक आज तक नहीं गया था, आज तक नहीं गया। अब बताइए, आज तक ऐसा कुछ हत्याकांडों का विचार हुआ है जिस हत्याकांडों में प्लेस ऑफ ऑकरेंस तक आयो नहीं जाके इंक्वायरी किया। इसीलिए हम लोग मानता हो कि जुबिन गार्ग का इंक्वायरी असम पुलिस नहीं कर पाएंगे। ये विदेश में हुआ है, इसका इंक्वायरी CBI को देना है। हम लोग CBI का जांच मांग रहा हो, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग डिमांड करता हूं कि हम लोग का होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पूरा फेल हो गया, वो रिजाइन करना चाहिए। आज हम लोग का बड़ा सबसे बड़ा डिमांड है, हम लोग एडजॉर्नमेंट मोशन होना है, चीफ मिनिस्टर पदत्याग करना चाहिए। देखिए, असेंबली के सामने हम AIUDF के विधायकगण हम यहाँ गांधी जी के स्टेचू के नीचे हम ये प्रतिवाद कर रहे हैं कि आप लोगों ने देखा है कि आसाम के मुख्यमंत्री आसामी नागरिक, भारतीय नागरिक जो इस मुल्क में जिसका पैदाइश है, इसी में मरना है, इसी में जीना है, उनको एक तरफा चुन चुन के मुसलमान को टारगेट करके जो सरकारी जमीन में थे उनको उच्छेद किया है, उनको इवेक्ट किया है। और उनके बच्चे अभी कहाँ हैं? मुख्यमंत्री के पास कोई खबर है? अब उनके बच्चे स्कूल जाने का कोई इंतजाम उनका नहीं है। जिनका घर तोड़ दिया, रोड पे है, तिरपाल के नीचे है। अब उनके बच्चे, किसी का मैट्रिक का 10th का एग्जाम है, किसी का 12th का एग्जाम है। अब वो बच्चे शिक्षा के अधिकार से उनका वंचित किया गया है। बूढ़े वृद्ध जो एजेड लोग हैं वो तिरपाल के नीचे पड़े हुए हैं, उनके चिकित्सा का कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री हिटलरी चला रहा है, उसको बंद करना चाहिए। इसलिए हम मीडिया के आपके तरफ से भी आपके जरिए उनको ये मैसेज देना चाहते हैं, आप इनह्यूमन इवेक्शन बंद कीजिए और संविधान को तार तार करके गांधी जी के इस देश में आप तांडव मत चलाइए और इस कमजोर लोगों को टारगेट बनाना आप छोड़ दीजिए। After a woman from Arunachal Pradesh was detained at the Shanghai airport in China on the grounds that her Indian passport specifying her place of birth is invalid, India has reportedly launched a protest with China. According to multiple reports, India has made a strong demarche with the Beijing. Mention may be made a woman from Arunachal identified as Prema Thongdok was held at the airport for 18 hours as she was singled out during security check for her onward flight. Meanwhile, Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu said he was deeply shocked by the treatment meted out to Thongdok by the Chinese immigration authorities. He said Arunachal is and will always be part of India. Assam BJP MLA Sushanta Borgohain stated on Tuesday the incident has been condemned by External Affairs Minister and the country's leadership will certainly address this situation. Earlier also one incident happened with some sportsperson of the Arunachal Pradesh. They were about to participate in the Olympic but could not do it because of this incident. They were not issued the passport.
Our external affairs minister has strongly condemned the incident, and this incident also has been condemned by our external affairs minister, because whole world knows that Arunachal is an integral part of India, and their identity is Indian. They are Bharatiya. They speak Hindi well. They show their culture in a national platform and everything, and the world knows that Arunachal is a part of India. So this may be an incident, but cannot separate Arunachal from India. Because everybody knows, the whole world, and Modi's government is strong enough for this kind of incident to condemn and to support the Arunachal people. So earlier this Chinese government or the China authority has shown this the Arunachal in the integral part of their side. Yes. You know, the aggressive and aggression systems of China, the world knows. The world has seen many kind of incident. But lately the relation between the India and China is very strong and very good. Our leadership will certainly address this kind of situation. And Arunachal, everybody knows, world knows, India knows, and Indian people knows. So they are integral part of India. So we do not have to worry about this kind of such a small incident. In Silchar, a deep sense of concern has emerged after the natural grass field of the Silchar sporting ground, where hundreds of young boys and girls from the Silchar Football Academy train every morning and evening, was reportedly rented out for a commercial trade fair. Images of young players standing silently with black cloth tied over their mouth have deeply moved the community. For thousands of children and teenagers, this field is more than just open space. It is a cradle of dreams. Every day, aspiring footballers practice here, chasing the hope of becoming star players in the future. But parents and coaches fear that if the trade fair goes ahead, the natural grass will be ruined, the ground will be dug up for stalls and pandals, and even after the fair concludes, it may take months for the field to return to playable condition. Regular training would come to a halt. The young trainees have appealed to the authorities of Silchar Sporting Ground and to those who granted permission for the event to protect the field. They point out that the town has many alternative venues for commercial fairs, but for the children, this is the only playground they have. हम लोग इधर में बैठे हैं क्योंकि हम लोग जब बारिश होता है तब हम लोग टर्फ में करते हैं। अभी हम लोग ठंड में हम लोग नेचुरल में करते हैं। अभी एक ट्रेड फेयर के लिए हम लोग नेचुरल में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ट्रक क्रैंक्स आके हम लोग के ग्राउंड को डैमेज कर रहे हैं। अभी हम लोग इधर में खेले तो हम लोग का सीरियस कुछ इंजरी हो सकते हैं, तो इसलिए हम लोग अभी कहाँ खेले। हम लोग का अभी तो खेलने का भी जगह चाहिए ना, हम लोग को इधर जगह नहीं, तो हम लोग कहाँ खेले। प्लीज़ मैं ट्रेड फेयर को रिक्वेस्ट करो, इधर में इस ग्राउंड को छोड़ दीजिए। इसको हम लोग को भी प्रैक्टिस करना है, हमको भी जगह चाहिए खेलने के लिए। बिकॉज वी हैव खेलना चाहते हो। यस, वी हैव टू प्ले फॉर इंडिया। आप डीएसए को कुछ बोलना चाहते हैं? डीएसए को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? डीएसए को प्लीज़ डीएसए रिक्वेस्ट करो, आप स्पोर्टिंग को समझाइए, क्योंकि इधर में ट्रेड फेयर के वजह से हम लोग खेल नहीं पा रहे। उनको बोलिए ये ट्रेड फेयर इधर से बंद करें, जैसे कि हम लोग का प्रैक्टिस कर पाए। थैंक यू। किस लिए बैठे? हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि हम लोग का जो फील्ड है जिसमें हम लोग विंटर में प्रैक्टिस करते हैं, उस फील्ड में अभी जो ट्रेड फेयर जो है वो बैठा है, जिस वजह से ट्रक्स वगैरह आ रहे हैं, वो पूरा जगह जो ग्राउंड है वो हमारा ख़राब हो रहा है। तो हम लोग विंटर्स में वहीं पर खेलते हैं, तो अभी वो ग्राउंड इतना ख़राब हो गया है कि हम उसमें नहीं खेल पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि वो जो फेयर है वो हट जाए ताकि हम उसमें खेल सकें। House-to-house verification by booth-level officers is currently underway across Guwahati to ensure an accurate and authentic voter list. The Election Commission of India has launched a special revision of Electoral Rules 2026, under which BLOs are conducting physical verification of voters. The door-to-door verification drive began on November 22, 2025 and will continue until December 20, 2025. BLOs are using pre-filled registers to confirm voter information with the head of the family or other eligible household members. बीएलओ अगर अच्छा से काम करेगा
हमारा एरिया में इतना नहीं होगा 2 नंबरी, लेकिन जहाँ में डी वोटर है, जहाँ बांग्लादेशी रखा हुआ है, जो डिपोटेशन नहीं होगा वहाँ में प्रॉब्लम आ सकता है, मालूम नहीं है। लेकिन वहाँ का बिल क्या करेगा पता नहीं। और जो बाहर से वोटर्स जो आएगा, मान लीजिए बिहार से, बॉम्बे, मुंबई से, ये कहीं से आएगा, यहाँ में भी एनरोलमेंट कर दिया वोटर लिस्ट में, फिर 5 साल बाद वो चला जाएगा, दूसरा जगह में होगा, इलेक्शन होगा, वहाँ में वो यहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिया, वहाँ में भी इलेक्टेड लॉ में दूसरा स्टेट में वो डाल देगा नाम, तब क्या होगा, इससे गड़बड़ हो सकता है। लेकिन किस बेसिस से किया है, ये बात ये है, व्हाट इंटेंशन दे आर कैरिंग इन देयर माइंड, इलेक्शन कमीशन का जो है उसका माइंड में क्या है, ये बात है। बाकी तो हम लोग तो वी आर जनरल पीपल, लेकिन हम लोग का तो वो नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कर रहा तो ठीक है, लेकिन हमारा आसाम में जो आसाम अकॉर्ड हुआ उसका कोई इम्प्लीमेंट अभी तक हुआ ही नहीं। ये होना चाहिए, प्रॉपर वोटर लिस्ट तो इंडियन सिटीजन का ही होना चाहिए इसमें एन लिस्ट, अदरवाइज इट विल डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। हमारा जो भारतीय नागरिक के लिए वो प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर। हम लोग अभी जो घर घर में जा रहे हैं, हम ये सब फॉर्म्स लेके जा रहे हैं। जैसे अभी है फॉर्म 6 है, फॉर्म 7 है, फॉर्म 8 है। किसी को अगर नया नाम अभी जो 17+ है, 18 नहीं हुए हैं, उनका हम मतलब नाम एंट्री करा रहे हैं। जो 18+ हो गए लेकिन उन्होंने अभी तक अपना नाम एनरोल नहीं कराया है, उनका भी हम लोग फॉर्म फिलअप करा के लेके रहे हैं कि उनको मतलब कोई दिक्कत ना हो कि इस बार नाम उनका आ जाए। और जिनका अभी देहांत हो गया है उनके लिए भी डिलीशन के लिए फॉर्म 7 हम लेके जा रहे हैं कि एक ही साथ में सब हो जाए। और जो ऑलरेडी है प्रेजेंट, उनका अगर कोई करेक्शन कराना है या फिर उनको कोई एड्रेस में कोई चेंज कराना है तो एक ही साथ में, एक ही टाइम में सब कुछ प्रॉब्लम का एक मतलब सॉल्व हो रहा है एक ही टाइम में। तो यही सबसे अच्छा बात है। तो उनके सामने बैठ के वो खुद कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं और हम जो कर रहे हैं वो देख रहे हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आता है तो एक ही टाइम में ही वो सॉल्व हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा बात है कि ये हो रहा है और सबके लिए ही अच्छा होगा। জীৱনৰ বিয়লি বেলাত এইটো যে পদক্ষেপ দেখিলোঁ মই সঁচাকৈ ভাল পাইছোঁ। এইবাৰ প্ৰথম হৈছে নেকি আমাৰ অসমত, হা হয়নে? নাই পোৱা। এইবাৰ প্ৰথম হৈছে, সেইটো পদক্ষেপ লৈছে, মই ভাল পাইছোঁ। য'তে জৰে তৰে মানুহবোৰ সোমাইছে, অসমখন তেনেই বেয়া হৈ গৈছে। এতিয়া এইটো পদক্ষেপ অসম গভৰ্ণমেণ্টে লৈছে, ভাল পাইছোঁ মই। আগৰ গভৰ্ণমেণ্টে লোৱা নাছিলে এইবোৰ, আমাৰ বুঢ়া হ'লোঁ দিয়াচোন, এইবোৰ পোৱা নাছিলোঁ। এইবাৰ প্ৰথম পাইছোঁ, ভাল হওক। আৰু য'তে ত'তে য'ত সোমাব লাগে ত'তহে যাব লাগে। এইবোৰ আমি পুৰণা মানুহ, য'ত মানে হেৰি হৈছে সেইবোৰলৈ তোমালোক যোৱা। Raijo Dal Chief Akhil Gogoi on Tuesday staged a protest during the ongoing winter session of the Assam Legislative Assembly, demanding justice for late singer Zubin Garg and calling for a Central Bureau of Investigation probe into his death. Gogoi questioned the lack of progress in the investigation and compared it to probes conducted in foreign jurisdiction. He alleged that the Assam police is incapable of carrying out a fair and complete investigation as several events related to the case occurred outside India. Gogoi further demanded the resignation of the Home Minister, alleging failure to follow due legal procedure. Not only that, but Akhil Gogoi also informed that the party has submitted an adjournment motion to ensure the House dedicates its proceedings to discussing the circumstances surrounding the singer's death. असम असेंबली ने हम लोगों ने 4 एडजॉर्नमेंट मोशन लाया था। 4 पार्टी ने हम लोगों ने लाया था कि हम लोग का असम का सबसे, इस समय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कलाकार जुबिन गार्ग का ऊपर एडजॉर्नमेंट मोशन सब जितना कार्यसूची से सब कार्यसूची बंद करके तो स्थगित करके इसका ऊपर डिस्कशन हो। असम असेंबली का हिस्ट्री का पहला दिन मेरा जीवन में कि आज पहला दिन एडजॉर्नमेंट मोशन को एक्सेप्ट किया और हम लोगों ने इसका ऊपर स्पीच दिया, 3rd पार्टी ने स्पीच दिया और इसका रिप्लाई चीफ मिनिस्टर ने दे दिया था। लेकिन हम लोगों ने देखा है
कि आज हम लोग का चीफ मिनिस्टर जी बहुत इरिटेटेड था, क्योंकि इस चीफ मिनिस्टर का टेन्योर में हम लोग का सबसे बड़ा कलाकार का मौत हो गया। चीफ मिनिस्टर ने इसको मर्डर बोला है, लेकिन मर्डर का क्या मोटिव था, मर्डर का एविडेंस क्या है? तो मर्डरर को कन्विक्शन देने के लिए जो कुछ एविडेंस, स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब का उस ऊपर कुछ नहीं बोल पाया था। आज हम लोगों ने देखा है कि चीफ मिनिस्टर को हम लोग पूछा था कि ये जो सिंगापुर में फंक्शन हुआ था, ये सिंगापुर का फंक्शन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने और असम का जो मिनिस्टर है पवित्र मार्गरेटा जी ने ऑर्गेनाइज किया था, उसको क्यों अभी तक नहीं अरेस्ट किया हुआ है? नंबर 1 हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है, इसका जो चीफ है, इसको जो महिला है, ये महिला को क्यों अभी तक अरेस्ट नहीं किया? हम लोगों ने पूछा कि जो ये इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट का जो याद में हुआ था, कैसे एक लोगों को सी में फ्री डाइव करने के लिए कैसे, तो ये नहीं होके क्या बोलता है, लाइफ जैकेट नहीं होके कैसे परमिशन दिया, उसको क्या अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा था। हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि जो फॉरेन में जो कुछ होता है, इसका ऊपर BNSS 2023 का जो 112 सेक्शन है, जिसमें लिखा हुआ है कि थ्रू कोर्ट ही इसका इंक्वायरी होना चाहिए, अभी तक नहीं किया है। हम लोगों ने पूछा है कि एक्यूज को सुरक्षा देने के लिए आपने ये क्या है? इसीलिए आज चीफ मिनिस्टर बहुत रेस्टलेस हो गया था, अच्छा से बोल नहीं पाया था, और आज हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि एक सदन का कमेटी बनाए, लेकिन अभी तक नहीं बनाया है। हम लोगों ने सब 126 MLA ने आज प्रपोज किया है कि मैंने प्रपोज किया था पहले कि हम लोग का जुबिन गार्ग को भारत रत्न देना है, तो प्रपोज करना चाहिए। असेंबली ने हम लोग प्रपोज करना चाहिए, और ये प्रपोज करने के लिए चीफ मिनिस्टर भी आज एडमिट किया है कि ये प्रपोजल लगाएंगे बोल के। तो इसीलिए आज असम का हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा दिन है कि हम लोग का सबसे बड़ा, इस समय का सबसे बड़ा कलाकार का जो देहांत हो गया था, अनटाइमली डिमाइज हुआ था, जो मर्डर हुआ था, इसका ऊपर असेंबली ने अच्छा से सब जितना कार्यसूची, जितना बिजनेस था, बिजनेस को पकड़ा के इसका ऊपर चर्चा हुआ, और गवर्नमेंट को हम लोग ने अच्छे से पकड़ लिया था। Newly appointed Inspector General of BSF Tripura Frontier, Alok Kumar Chakravarti, on Monday outlined a series of measures to strengthen border security and curb cross-border crime, citing the current unstable situation in Bangladesh. Speaking in his first interview since assuming office, Chakravarti highlighted Tripura's strategic importance, sharing borders with Bangladesh on 3 sides. बांग्लादेश के अंदर आज के डेट में सिचुएशन अनस्टेबल है। इलेक्शंस फरवरी में डिक्लेयर्ड है, होगा नहीं होगा ये बांग्लादेश के इंटरनल अफेयर्स हैं, क्योंकि इलेक्शंस डिक्लेयर्ड है और पिछले 1 साल से पॉलिटिकल टर्मोइल चल रही है। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ से हटके वहाँ पे अभी एक एडवाइजरी काउंसिल बांग्लादेश की इंटरनल अफेयर्स कंट्रोल कर रही है। तो इसकी बहुत सारी इम्प्लिकेशंस जो है, उसका असर हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी पे भी पड़ रहा है, और जिसके कारण बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हमारे जितने बटालियंस बांग्लादेश बॉर्डर पे, त्रिपुरा फ्रंटियर पे डिप्लॉयड है, सबको हाई अलर्ट में रखा गया है, और किसी भी इवेंचुअलिटी को टैकल करने के लिए डिफेंस एज वेल एज बॉर्डर गार्डिंग की पर्सपेक्टिव से सारी तैयारी की गई है। और हमने हमारी जो BOPs को सुरक्षित रखने के लिए उनकी जो तैयारी है, जो बॉर्डर फेंसिंग को सुरक्षित रखने के लिए तैयारी है, उसकी बॉर्डर फेंसिंग की सफाई है, बॉर्डर फेंसिंग की मेंटेनेंस है, ये सब कार्रवाई कर लिया है। और
रेगुलर ज़ीरो लाइन पेट्रोलिंग, IBBF के साथ पेट्रोलिंग, IBBF के आगे जो हमारी इंडियन टेरिटरी है उसकी डोमिनेंस, IBBF के उन साइड में हमारे जो बॉर्डर बेल्ट की डोमिनेंस, ये सारी चीज़ें हमने रिव्यू किया है और रिव्यू करके हम नए सिरे से हमारा डोमिनेशन प्लान इम्प्लीमेंट किया है। और इस डोमिनेशन प्लान में हमारी कोशिश ये भी रही है कि जो इंडियन नेशनल्स बॉर्डर बेल्ट पे रहते हैं उनको भी हमने इस पे शामिल किया है, ताकि उनकी भी सुरक्षा, उनकी भी सेंसिटिविटीज़ को हम ध्यान में रख सके। BSF क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो अगर अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन डेवलप होती है तो BSF को ही सबसे पहले उसका मुकाबला करना होगा, जिसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारे ट्रूप्स पूरे तरीके से अलर्ट और विजिलेंट हैं। जहाँ तक बॉर्डर सिक्योरिटी फेंसिंग की बात है, इंडो बंगला बॉर्डर फेंस की, बॉर्डर फेंस की ये लाइफ अभी मोस्ट एरियाज में आउटलिव कर गए हैं, तो ये इसकी प्रपोजल्स बन के हमारा चला गया है और बहुत जल्द न्यू डिज़ाइन फेंस जो जिसको विच इज़ सपोज टू बी ब्रिच प्रूफ, विच इज़ सपोज टू बी कट प्रूफ, वो न्यू डिज़ाइन फेंस की प्रपोजल अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बड़ा जोर शोर से परस्यू किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि कुछ दिनों में ये न्यू डिज़ाइन फेंस हम की प्रपोजल अप्रूव होके आ जाएगी और हम तकरीबन 500+ किलोमीटर्स पे जल्दी न्यू डिज़ाइन फेंस बनाने में सक्षम हो जाएंगे। पुरानी फेंस के जगह न्यू डिज़ाइन फेंस बनाने में सक्षम हो जाएंगे। इसके अलावा हम लोग टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन बॉर्डर मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, जिसके तहत अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, स्पेशल सर्विलेंस इक्विपमेंट्स, CCTV कवरेज ऑफ द एंटायर बॉर्डर बेल्ट, ये भी प्लान में है और इसकी भी एक प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है और वो भी हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी एक कॉम्प्रिहेंसिव लो कॉस्ट सर्विलेंस सिस्टम त्रिपुरा बॉर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.